last time, that means in the previous class, I have discussed about one questions from exercise 1.3. ठीक है ना? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं because at the last time I have already told about definition of one function and onto function and composition of two functions. Here question 3. See here, find GOF and fog if there is given fx equal to this, gx equal to this, and first question and second question. So solution of one by one we have to solve now questions from exercise 1.3. Okay, we have to find here GOF and fog. So here given what are given fx and gx, because दो फंक्शन दिया रहेगा, हमको गॉफ निकालना है, फॉग निकालना है. इसके बाद जो मेन क्वेश्चन आएगा ना 6-7 में. ओके, सो हियर स्टार्टिंग में fx इक्वल टू क्या दिया है, mod x. fx इक्वल टू mod x और gx इक्वल टू mod of 5x minus 2. फॉर फाइंडिंग गॉफ, ओनली गॉफ x भी लिए लिखा है. इसका मीनिंग है गॉफ x फाइंड करना है, मींस जस्ट लाइक fx इक्वल टू दिस, gx इक्वल टू दिस, सिमिलरली गॉफ x इक्वल टू व्हाट. ओके, वी हैव गॉफ ये सिंगल फंक्शन एज ए कंपोजिशन. x means what? Definition we know like this. Gauss x equal to, okay, just you have to put the value g of fx, just x की fx की वैल्यू यहाँ रखना है, mod x. Gauss x means g fx equal to mod x, and g of this is single element suppose, then gx equal to this. That means what will be the value? Modulus of 5 in place of x, just you have to write mod x minus 2. So this is gauss x. यही फाइंड करना था गॉफ. सिमिलरली फॉग also FOG, fog x means f of gx equal to this. So we can write f of, in place of gx write this, mod 5x minus 2. Okay, now f of this single element, use this value in this definition of f. So this is equals to what? Mod of 5x minus 2. Double time mods, so you can write single time 5x minus 2. So this is fog x, FOG-x. This is for first question. पहला वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए ये गॉफ की वैल्यू है और ये फॉग की वैल्यू है. क्लियर? सेकंड में भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? हेलो, सेकंड भी निकल जाएगा ना. गॉफ एक्स की वैल्यू क्या होगा? सब लोगों को मैंने बताया. एवरीवन शुड टेक योर कॉपी एंड पेन एंड सिट इन ए साइलेंस प्लेस. सॉल्व करते रहना है, बीच बीच में एक्टिव रहना है. चलो, गॉफ एक्स की वैल्यू क्या होगा, सॉल्व करके बताओ फटाफट. इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है. ये जो अभी थर्ड क्वेश्चन, ये जो सेकंड पार्ट है, ना, इसमें सेकंड पार्ट, जस्ट टेक सेकंड पार्ट. fx इक्वल टू व्हाट? 8x क्यूब. ये मेरे बात करते करते सॉल्व कर लो फटाफट. 8x क्यूब एंड gx इक्वल टू x पावर 1/3. सेकंड पार्ट, x पावर 1/3. now just find the value of gauss x. reply me anyone. hello, जल्दी करो. For the second case, fx equal to 8x cube and gx equal to x to the power 1/3.
we have to find gof x equal to g f x equal to what? 8x cube, 8x cube. So gof x equal to what? gof x equal to क्या होना है यहाँ पर? 2x ना, गुड, 2x होना है बिकॉज gx इक्वल टू ये अब g की डेफिनेशन लगेगा, इसका डेफिनेशन लगेगा. सो व्हाट? 8x क्यूब पावर 1/3. सो 2 का 1/3 मींस 2 एंड x. सिमिलरली fog x, gx इन प्लेस ऑफ gx जस्ट राइट. सॉल्व करो इसको भी, जल्दी करो सॉल्व. f gx equal to this x power 1/3 is equals to what will be the value? x to the power 1/3. अब f की वैल्यू लगेगा, gx की वैल्यू तो ये रख दिया. अब f का जो डेफिनेशन है ये 8x means x power 1/3 power 3. So what is the value? 8x. Clear? 8x वैल्यू आया कि नहीं? हेलो, 8x आया? Yes, sir. Good. Now take next question. very important questions मैंने बताया था ना. अभी 5th क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अभी? 3rd. देन 4th क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f? फाइंड क्या करना है इसमें? fx इज गिवन एंड x इक्वल टू नॉट 2/3. शो दैट f of x इक्वल्स टू x for all x not equals to 2/3. what is the inverse of f? इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? फर्स्ट पहले क्या निकालना है? हेलो, सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड व्हाट? क्या फाइंड करना है? गॉफ होता है ना, दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन. यहां फॉफ सिंगल फंक्शन है, जी के जगह भी f लेना है. क्लियर है? And here fx equal to what given? fx equal to given fx equals to x 4x plus 3 by 6x minus 4. 4x plus 3 by 6x minus 4. x is equal to naught. Here x equal to naught 2/3. कोई बता सकता है x equal to naught 2/3 why? Anyone reply me? x equal to naught 2/3. देखो क्लास में जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा समझाने के लिए करा, ढेर सारा क्वेश्चन कराऊंगा, उस पर मत जाना. अभी एक क्वेश्चन करूंगा सॉल्व 6 या 7, जो 5 क्वेश्चन की में सेम प्रोसेस है. मेन थिंग इज अंडरस्टैंडिंग. हाउ कैन यू फाइंड इनवर्स, इन्वर्टिबल, 1 1 and 2. बस यही है क्वेश्चन. ओके, सो हियर x इक्वल टू नॉट 2/3. इट मींस व्हाट? क्यों ये जरूरत क्यों पड़ा लिखना x इक्वल टू नॉट 2/3? एनीवन टेल मी? कोई समझ रहा है ये फंक्शन का? हेलो सर, अगर x इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा फंक्शन, तो पूरे उसके बाद सेम ही नहीं रहेगी. गुड. इसका मीनिंग ये हुआ कि फंक्शन का दिस इज द गिवन फंक्शन, इस फंक्शन की डेफिनेशन के लिए ये जरूरी है, मतलब 2/3 नहीं होना चाहिए x को. दैट मींस डोमेन ऑफ द फंक्शन fx कंटेन्स ऑल द नंबर्स. बिकॉज यहाँ कुछ दिया नहीं है कि रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, क्या है, कुछ नहीं दिया है. मींस मे बी एनी रियल नंबर x बट नॉट इक्वल्स टू 2/3. 2/3 को छोड़ के सभी रियल नंबर fx फंक्शन का डोमेन है. क्लियर है? इसीलिए दिया हुआ. So this is the given function. Okay, ये given है. Now we have to find f of f. Means g नहीं है यहाँ पर, f को ही लेना है 2 बार. क्लियर है? Okay. So
we have f o f x. अब क्वेश्चन लास्ट में है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f भी लिखा हुआ है, बट पहले इसको निकालते हैं, f ऑफ fx बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ गॉफ. दोनों ये g है या g और f दोनों इक्वल है, तो f ऑफ fx, f ऑफ fx दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ fx ये लिखना है. सो f ऑफ 4x plus 3 upon 6x minus 4. Clear? अब this is single element and you use again this formula, क्योंकि एक बार fx की वैल्यू ये लिख दिया, फिर f आया. अब now this is single element, treat and use this in place of x again because f. So क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 4 into x, in place of x just write this 4x plus 3 upon 6x minus 4 plus 3 upon 6x, 6 into in place of x this 4x plus 3 upon 6x minus 4 minus 4. Okay, just solve it and tell me what is the answer. इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इधर एलसीएम ले लो, प्लस माइनस करो, क्या वैल्यू आएगा, टेल मी, जल्दी करो. देखो एक्टिव रहना है, सॉल्व करते हुए जाना है साथ साथ, ऐसे नहीं कि बैठे बस खाली. Anyone, tell me, what is the value? कॉपी पेन लेके बैठना है, सॉल्व भी करते रहना है. वैल्यू क्या आ रहा है, कोई तो बताओ. हेलो हेलो, एलसीएम लो, सॉल्व करो. ओके, कोई नहीं किया अभी तक सॉल्व. हेलो सर, एक्स आ रहा है. गुड. ये सब कैलकुलेशन करना है, जस्ट यू हैव टू डू इट. ये सिंपल कैलकुलेशन मैं करने बोलूंगा तुरंत करना है, लिख दूंगा डायरेक्ट. इसके बोलिए आया बस. अभी ये क्या है ना, एलसीएम लेना है, नीचे का सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद इसको इंटू करो, सॉल्व करो, देखो एक्स आया वैल्यू. सो वी गेट f of x equals to x. Now implies f o f x equals to x. X is the element of domain of f and f of x equals to x. That means what, this is gives an identity function. ये आइडेंटिटी फंक्शन है, x x से मिला है, और ये आइडेंटिटी फंक्शन किस में है, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन f के डोमेन में ही है, बिकॉज ये x इज द एलिमेंट ऑफ f, डोमेन ऑफ f. सो x मिला इसकी वैल्यू, इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, f ऑफ f. ओके, सो यहां लिख सकते हो implies f o f equals to identity function domain f. ये जो मैंने नोटेशन लिखा है डोमेन ऑफ f, इसका मीनिंग ये हुआ जो फंक्शन fx का डोमेन है उसमें एक आइडेंटिटी फंक्शन ही रिप्रेजेंट हो रहा है इससे. बिकॉज जस्ट रिमेंबर yesterday I have already told that gof x एक डेफिनेशन दिया था, gof x इक्वल्स टू I डोमेन f. अगर f a to b डिफाइन है तो यहां a लिख सकते हो ये, एंड
FOG ये डेफिनेशन अगर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर इस टाइप का है तो बी। कल का डेफिनेशन क्या था? फंक्शन f from a to b is invertible if there exists a function g from b to a। रिवर्स में एक फंक्शन का एग्जिस्ट होता है गॉफ x इक्वल्स टू IA। IA मीन्स व्हाट? आइडेंटिटी फंक्शन ऑन A मीन्स इस पे, ये मीन्स इसके डोमेन पे आइडेंटिटी फंक्शन। और फॉग मीन्स जी के डोमेन में एक आइडेंटिटी फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। गॉफ IA बताए, IA मतलब इसके डोमेन में आइडेंटिटी फंक्शन, इसका मतलब जी के डोमेन में आइडेंटिटी फंक्शन। If function, for this function there exists a function g such that these two holds, then we say that g is the inverse of f। g is the inverse of f। so वही डेफिनेशन यहाँ फॉलो हो रहा है। दो बार ले लो, फॉफ लिया है, ठीक है ना, FOF g के जगह भी f आ गया, तो दो बार लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, एक ही बार लिखेंगे। तो फॉफ इक्वल्स टू आई ऑफ डोमेन एफ लिखा हूं, डोमेन का नेम नहीं है, सो डोमेन एफ लिख दिया हूं। अब वो दोनों फॉलो हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, वह जी एफ का इनवर्स है और यहां तो दोनों सेम है, तो एफ एफ का इनवर्स है। इंप्लाइज द फंक्शन एफ इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। एफ खुद एफ का इनवर्स है, दैट इज एफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ। इनवर्स फंक्शन होता है, जब ए से बी पे एक फंक्शन होता है तो बी से ए पे भी फंक्शन आ सकता है। कल का डेफिनेशन क्या था? फंक्शन इज, फॉर दिस फंक्शन इफ वी कैन फाइंड जी सच दैट लाइक दिस, देन फंक्शन जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। ओके, ये इस टाइप से अगर एग्जिस्टेंस है तो। और दूसरा डेफिनेशन ये भी था, फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ फंक्शन इज वन वन एंड onto also, because particularly we can discuss by taking example in example that ये अगर ट्रू होता है तो both function are one one and onto। so f इन्वर्टिबल, ओनली इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना था? कल बताया था, वन वन एंड onto बता दो। इनवर्स फाइंड करना है तो ये दोनों करना पड़ेगा और जी को बोल देना है कि एफ का इनवर्स है। क्लियर है? सो दिस इज क्वेश्चन 4। नाउ टेक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन तो कर लेना, सिंपल है, वो यही सब डिस्कशन है हर जगह पे ना, वन वन onto एंड इन्वर्टिबल। अब जब ये थर्ड एक्सरसाइज आया ना, इसमें ये सब है, इन्वर्टिबल है, ओनली इन्वर्टिबल, जस्ट यू हैव टू प्रूव, सपोज ओनली इन्वर्टिबल, देन just so that one one and onto function, and if finding inverse then you have to find Goff and Fogg। okay, so take question 6 करेंगे और question 8 करेंगे सॉल्व। okay, 6 7 8 9 all are same type of questions। so here 6, question 6, तो question 6 में क्या दिया है? हेलो, डोमेन क्या है फंक्शन का? टेल मी, एनी वन ऑफ यू टेल मी, कोई ना कोई बोलो, क्या है फंक्शन का डोमेन? क्वेश्चन 6। गिवन फंक्शन -1 1 2 R। clear? so what is the domain? hello, domain बताओ। -1 and 1 sir। -1 and 1 means interval -1 and 1, interval -1 and 1। okay,
सो दैट फंक्शन इज 1 1, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 1 1 प्रूव करना है। फंक्शन का डेफिनेशन एज ए रैशनल फंक्शन गिवन है। सो अपना क्या प्रोसेस होता था, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेके एक्स इक्वल टू वाई दिखाना, 1 1 आ जाएगा। एंड देन सेकेंड पार्ट इज व्हाट, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ -1 1 2 रेंज ऑफ एफ लिखा हुआ है, और पहले वाले में क्या लिखा है, एफ -1 1 2 कैपिटल आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर। एफ जो गिवन है फर्स्ट टाइम 1 1 जिसको प्रूव करना है, उसमें कोडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर। जब इनवर्स फाइंड करने बोला है तब क्या लिखा है, देखो यह समझने वाली बात है, मेन थिंग इज अंडरस्टैंडिंग पार्ट, कि हमको यहाँ करना क्या है, क्या क्या इसमें दिखाना है। इनवर्स निकालने बोला है, इसका मतलब वही सोच रहे हैं कि गॉफ फॉग ये सब करना पड़ेगा, वो तो है ओके, बट उसके पहले इनवर्स फाइंड करने के पहले एक चीज और ध्यान देना है, फंक्शन इज इनवर्टिबल देन इनवर्स एग्जिस्ट, then we can define another function g from reverse order। एक बार और अच्छे से समझा देता हूं, देखो समझने वाली पार्ट मेन बता रहा हूं बार बार, क्योंकि क्वेश्चंस तो ढेर होता है। ओके, if a to b is a function, ये जो है ये हो गया, b जो है ये हो गया, ओके सपोज b है ये है, और ये f डिफाइन है। फॉर द definition of function, all elements of A are connected to some element of B। ये कोडोमेन है, तो F का जो रेंज है, ये F का रेंज कंप्लीटली B होना जरूरी नहीं रहता, इसका रेंज हो सकता है इतना पार्ट हो, बट whenever function is unto, जैसे unto होता है तो ये टोटल, unto के केस में क्या होता है, रेंज F इक्वल्स टू कोडोमेन, ये तो पता है ना सबको। Unto means what? Unto means every element of codomain is connected with some element from here। Unto का मीनिंग है। और रेंज की बात करें तो all the elements of A are connected to some element of this। some element of this means यहाँ कुछ एलिमेंट छूट भी सकता है, तो रेंज अलग हो जाता है। जब फंक्शन अनटू होता है तो इसके सभी एलिमेंट इससे कनेक्ट होते हैं। सभी एलिमेंट कनेक्ट होने का मीनिंग ये हुआ कि फंक्शन का जो रेंज है, ये जो रेंज है और ये जो कोडोमेन है, दोनों इक्वल हो जाता है। यही है तो रेंज एफ, फंक्शन का रेंज, रेंज मीन्स यहां पर के जो एलिमेंट है जिससे कनेक्टेड है, सो ये और कोडोमेन अगर दोनों इक्वल है तो अनटू होता है, ये होता है। ओके, अब फंक्शन हम डिफाइन करते हैं ए टू बी, ये डोमेन है ये कोडोमेन है। अब पता चला यही रेंज है, यही रेंज है, तो यू कैन से डायरेक्टली सिंस कोडोमेन इज इक्वल टू द रेंज ऑफ फंक्शन, सो फंक्शन इज अनटू, सो अनटू प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक लाइन में बता सकते हैं कि अगर ये कोडोमेन क्या हो, फंक्शन का रेंज हो, फंक्शन का रेंज अगर कोडोमेन हो दैट इज इक्वल हो, दैट मींस फंक्शन इज अनटू। अनटू का डेफिनेशन है वो, क्लियर है। तो इस जगह पे क्या हुआ, इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, -1 1 2 r सेट ऑफ रियल नंबर, ये गिवन है, इसको 1 1 प्रूव करना है। जब इनवर्स फाइंड करने की बारी आएगी तब देखो यहां पर r ना लेके रेंज ऑफ f दिया हुआ है। अगर यहां पर रेंज ऑफ f लेंगे तो ऑलरेडी अनटू है, तो पहले 1 1 प्रूव हो चुका, और फिर इसमें से केवल रेंज पार्ट को ले रहे तो अनटू भी हो जाएगा। सो 1 1 अनटू, इनवर्टेबल, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट, देन जैसे इनवर्स एग्जिस्ट होगा इज 1 1 अनटू हमने दिखा दिया, 1 1 एंड अनटू। फंक्शन 1 1 अनटू जैसी हमने बताया तो क्या हो जाएगा, f इज इनवर्टिबल, f इज इनवर्टिबल मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स कैसे डिफाइन होता है, उल्टा, f a to b 1 1 अनटू है, प्रूव कर दिया,
तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स इसका उल्टा डिफाइन होता है, इसके आगे लिखना पड़ेगा एफ इनवर्स बी टू ए एग्जिस्ट। अगर 1 1 और 2 है तो उल्टा डिफिनेशन में एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसी एफ इनवर्स को हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते समय जी लिख लेते हैं, जी। ओके, इसी एफ इनवर्स की जगह हम क्या लिख लेते हैं, जी। जी इज द इनवर्स, सो जी एग्जिस्ट करेगा। अब जी एग्जिस्ट करेगा, वो जी का डेफिनेशन कहां से आएगा? क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन, जो भी इनवर्स का डेफिनेशन या जी का डेफिनेशन, ये कुछ डेफिनेशन आएगा। जैसे फंक्शन का डेफिनेशन दिया रहता है, वैसे जी का भी एक डेफिनेशन हमको अपने से डिफाइन करना है, फ्रॉम आवरसेल्फ डिफाइन करना है। और उस जी का डेफिनेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, अनटू को यूज करते हैं। अभी जस्ट प्रीवियस क्लास में भी बताया हूं, ऐसे y इक्वल्स टू एफ एक्स लेना है और इसको सॉल्व करते जाना है, और x की वैल्यू y के फॉर्म में, x की वैल्यू किसके फॉर्म में लाना है, y के फॉर्म में लाना है, फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में लाना है। और यही जो वैल्यू होता है x का वैल्यू, ये जो x का वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू आया, इसी को जी डिफाइन करते हैं। और ये कब मिलता है, जब अनटू होता है। सो अनटू मीन्स for y belongs to b, there exists x belongs to a such that y equals to fx. This is onto definition. If function is onto, then we can use this definition. So y equals to fx ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर x की वैल्यू y के फॉर्म में लाना है, और ये जो वैल्यू है उसी को हम g डिफाइन करते हैं। क्लियर हुआ? हेलो, एनीवन टेल मी, क्लियर हुआ कैसे करते हैं? अच्छे से समझना है, माइक केवल चालू करके इधर उधर नहीं हो जाना। एनीवन रिप्लाई मी, जो मैंने समझाया समझ में आया कि नहीं? हेलो, कोई तो रिप्लाई करो कि केवल बस मैं चिल्लाता रहूंगा और तुम लोग वैसे मोबाइल चालू करके बस बैठे रहोगे चुपचाप। क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें? क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 1 प्रूव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज गिवन डेफिनेशन। व्हाट डेफिनेशन इज fx इक्वल्स टू, fx इक्वल टू क्या लिखा है, x by x plus 2, x by x plus 2, x by x plus 2। ये जो फंक्शन है ये डोमेन है, f गिवन है, f डोमेन है, कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, such that fx इक्वल टू दिस is the definition of function। Whenever definition of function is given in terms of rational function or in linear, quadratic, किसी भी टाइप का फंक्शन दिया हो तो 1 1 प्रूव करने का टेक्निक क्या होता है, fx इक्वल टू fy लेना है और x इक्वल टू y प्रूव करके दिखा देना है सॉल्व करके। गिवन फंक्शन इज दिस, नाउ fx इक्वल्स टू fy, implies now for x y belongs to -1 plus 1। पता है ना, यहाँ का दो एलिमेंट लेना है, fx इक्वल टू इमेज को इक्वल लेना है, सॉल्व करते जाना है इस डेफिनेशन को यूज करके, और x इक्वल टू y इमेज को एलिमेंट को इक्वल दिखा देना है। तो फॉर x y बिलोंग्स टू दिस डोमेन fx इक्वल टू y इक्वल्स टू, fx की डेफिनेशन ये है x अपॉन x प्लस 2 equals to fy means y upon y plus 2। by solving this you can get x equal to y, ये x equal to y आ जाएगा सॉल्व करोगे तो, xy plus 2x equals to xy plus 2y, solve it, you can see that y x equal to y। ये देखो fx equal to fy है तो x equal to y मिल गया, therefore f is 1 1, f is 1 1 प्रूव हो गया। From here to here, this is domain, this is codomain। ओके, ये 1 1 प्रूव हो चुका है। फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि इनवर्स फाइंड करना है, और f जो रहेगा दिस टू, यहां पर r की जगह बदल दिया, रेंज f कर दिया। रेंज f जैसे ही किया, we can say that the function domain codomain of the function is equal to the range of the function, so function is onto, so you can write like that। okay, so here
सेकेंड पार्ट में क्या लिखना है? सेकेंड पार्ट में इनवर्स निकालना है। हियर f -1 to 1 to what? Range f, range f, रेंज f दिया हुआ है। ओके, since range of f is equal to codomain of f, therefore f is unto. So for y belongs to range f, there exists an element x belongs to -1 1 such that y equals to fx implies y equals to, or definition is what? X by x plus 2, x upon x plus 2. From here you can find the value of x. Just tell me, value of x is what? कोई ना कोई मेरे को बताओ, यहां पर y इक्वल टू एक्स अपन एक्स प्लस 2 है तो x इक्वल टू क्या होगा? यहां पर पूरा समझा दिया हूं। अनटू का डेफिनेशन, अनटू है तो अनटू का डेफिनेशन यूज हो रहा है। 1 1 पहले था, प्रूव हो चुका था, अनटू भी है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अनटू का डेफिनेशन यूज किया, y इक्वल टू fx, इसको लिया, अब x की वैल्यू निकाल रहे हैं। इसी को तो जी डिफाइन करना है। ओके, सो क्या होगा x की वैल्यू? जस्ट रिप्लाई मी, जल्दी करो। हेलो, x इक्वल टू क्या होना है? Sir, 2y by 1 minus y. 2y upon 1 minus 1 minus y. y. 2y upon 1 minus y. क्या करना है? इसको इधर इंटू कर दो, दोनों तरफ ले जाओ, ट्रांसफर करो एक तरफ, जहां x को कॉमन ले लो, फिर x को लेफ्ट साइड में रखना है, राइट साइड में ट्रांसफर करो, y x इक्वल टू 2y upon 1 minus y. Here you can write y is equals to not 1. अब देखो नीचे 1 minus y आया और हमने लिख दिया कि y equals to not 1. y किसका एलिमेंट था? y is the element of range f. बिकॉज यहां पर हमको इसका एग्जिस्टेंस होता है, यहां पर इसी को तो हम g डिफाइन करने वाले हैं। तो x की जो वैल्यू है ये y इक्वल टू नॉट 1, हमने y इक्वल टू नॉट 1 लिखा, यहां रेंज f में है y किस में है? रेंज f में है। तो रेंज f मींस व्हाट? फंक्शन का डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलता है, मतलब रेंज f, फंक्शन का रेंज कैसे डिफाइन होता है? रेंज f मींस व्हाट? वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू डोमेन। ये होता है रेंज की डेफिनेशन। ये 11th में पढ़े रेंज की डेफिनेशन। fx की वैल्यू जो होती है वही सब रेंज में रहता है, मतलब ये वैल्यू रेंज में रहता है। ये वैल्यू 1 हो सकता है कभी, टेल मी, x अपन x प्लस 2 कभी 1 हो सकता है क्या? दिस वैल्यू एनी टाइम, दिस वैल्यू मे बी इक्वल टू 1 और नॉट, चाहे x की वैल्यू कुछ भी ले लो। क्यों? कोई भी बताओ, हो सकता है? ये 1 नहीं हो सकता। Why? क्योंकि x जो है और x प्लस 2 है, इसमें बीच में क्या लिखूं मैं बताओ? यहां क्या लिखूं? लेस देन की ग्रेटर देन? लेस देन। अभी फिलहाल लेस देन, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो कुछ और होगा, ग्रेटर देन, इक्वल तो होगा नहीं। चाहे यहां कुछ भी रख दो इसके जगह, इक्वल तो कभी हो नहीं सकता। सो ये अगर ऐसा है तो x अपॉन x प्लस 2 इज लेस देन 1, 1 से लेस होगा या तो 1 से ग्रेटर होगा।
इक्वल नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है अगर x इक्वल टू जीरो है तो। सो y इक्वल टू नॉट वन। ओके, ये एग्जिस्टेंस मिला। अब यहां पर एग्जिस्टेंस मिला ये सब नहीं बताना है, बिकॉज ऑन टू है, उस डेफिनेशन का यूज किया और x की वैल्यू निकल, ये जो x है इसी को जी डिफाइन करेंगे, बिकॉज वी वांट टू फाइंड एफ इनवर्स, इनवर्स फाइंड करना है। और इनवर्स फाइंड करने का मतलब मैंने क्या बताया था कि फंक्शन अगर एफ ए टू बी है तो इनवर्स फाइंड करने के लिए एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करेंगे जो एफ इनवर्स होगा, और उसको डिफाइन करेंगे बी टू ए में, और इसका जो डेफिनेशन होगा यही से होगा। ये ऑन है, वन ऑन टू है तो इन्वर्टिबल है, इनवर्स एग्जिस्ट किया। अब इनवर्स डिफाइन करने के लिए जो क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी कहां से आएगा, ऑन टू के डेफिनेशन से आएगा, और उस वैल्यू को जी डिफाइन करना है, और फिर वो दिखाना है। फिर क्या दिखाना है, फिर गॉफ फॉग इन दोनों को दिखाना है, आई ए आई बी ये दिखाना है आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे ये प्रूव हो जाएगा वैसे हम बता देंगे जी को क्या, एफ का इनवर्स, ये एफ इनवर्स फाइंड करने का टेक्निक। ओके, सो हियर अब क्या बारी, अब कौन सा टाइम आया, जी को डिफाइन करने का टाइम आया। नाउ डिफाइन ये फंक्शन जी फ्रॉम, अब जी एक फंक्शन डिफाइन करें, नाउ डिफाइन ए फंक्शन जी, जी यहां से यहां डिफाइन होगा, रेंज एफ टू माइनस वन प्लस वन, ये हम अपने से डिफाइन करेंगे जैसे वो आया। तो नाउ डिफाइन ए फंक्शन जी दिस टू दिस सच दैट जी का डेफिनेशन लिख रहे हैं। ओके, जी का डेफिनेशन लिखोगे तो यहां पर क्या लिखना है, यहां का एलिमेंट, तो जी वाई, रेंज एफ का एलिमेंट, इधर वाले को वाई देते हैं, इधर वाले को एक्स देते हैं, तो जी वाई, और इसी को लिखेंगे ये वाला 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये हम अपने से डिफाइन किए, जी वाई इक्वल्स टू दिस, जी वाई इक्वल्स टू दिस, ये डेफिनेशन है, और हियर y इज नॉट इक्वल्स टू 1, बस ये डेफिनेशन हमने अपने तरफ से दिया। अब हमको प्रूव करके दिखाना है गॉफ एंड फॉक की वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन है। ओके, अगर हो गया तो जी को क्या बोल देंगे, एफ का इनवर्स। नाउ वी सी दैट क्या निकालना है, गॉफ, और गॉफ यहां पर एफ है तो यहां एक्स आएगा, एक्स, ये क्लियर, गॉफ एक्स जी एफ एक्स की जो वैल्यू है वो गिवन डेफिनेशन जो है जी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। अब वही जी के सामने सिंगल एलिमेंट है, अब जी के डेफिनेशन जो हमने दिया उसको यूज करना है, ये वाला, ये जो जी का डेफिनेशन है, इस जी के डेफिनेशन को यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी वाई इक्वल टू व्हाट, 2y अपॉन 1 माइनस वाई, वाई के प्लस में ये पूरे को रखना है, सो 2 इंटू वाई के प्लस पे x अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वाई, सो 1 माइनस ये वाला एलिमेंट x अपॉन x प्लस 2, जस्ट सॉल्व इट, सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसको सॉल्व करो, वैल्यू क्या आ रहा है, टेल मी वेरी फास्ट, क्या वैल्यू आ रहा है जल्दी, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, हेलो, क्या होगा सॉल्व करेंगे तो
इसको एलसीएम ले लेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस एक्स, एक्स कैंसिल, नीचे 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, x x वैल्यू क्या होगा? हेलो, अभी भी कई लोग एक्टिव नहीं है, फटाक से इसकी वैल्यू x आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, x आया ना, ये देखो गॉफ x इक्वल टू x आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन लिख सकते हैं। किस पे? ये गॉफ x है, x किसका एलिमेंट है? x किसका एलिमेंट है? इस f के डोमेन का। f का डोमेन क्या था? f का डोमेन बताओ, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, f का डोमेन -1 to 1, ये f का डोमेन। देखो ये जो लिखते हैं ना हम लोग i a x इक्वल टू x, ये आइडेंटिटी फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ये के सभी एलिमेंट के लिए ये जो फंक्शन है ये i a x को x ही बनाता है। ये गॉफ x है, x है, x को x ही बनाया और x किसका एलिमेंट था? f का डोमेन का। तो f के डोमेन में आइडेंटिटी फंक्शन है, x i डोमेन लिख दिया। सिमिलरली हियर वही जो हमारा फॉर्मूला है गॉफ x इक्वल टू i a, मींस अगर f का डोमेन a हुआ और फॉग g का अगर उल्टा जाएगा b तो i b होता है। यहां पर gy, अब ये भी गॉफ एंड फॉग ये भी निकालना है। अब gy की वैल्यू जो डिफाइन हमने किया है, क्या डिफाइन किया हमने? gy की वैल्यू हमने क्या डिफाइन किया था? gy इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस y, ये डिफाइन किया था। सो f ऑफ 2y अपॉन 1 माइनस y। अब gy की जगह ये लिख दिया। अब f का डेफिनेशन यूज करना है। f का डेफिनेशन क्या है? x अपॉन x प्लस 2। सो x के प्लस 2 ये यूज करना है। 2y अपॉन 1 माइनस y अपॉन 2y अपॉन 1 माइनस y प्लस 2 और इसको सॉल्व किया। यहां सॉल्व करने से क्या आएगा? टेल मी फर्स्ट, इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आना है? y आना है, y। तो ये क्या हो जाएगा? रेंज f। आइडेंटिटी फंक्शन है रेंज f पे, क्योंकि y किसका एलिमेंट है? ये y किसका एलिमेंट है? g पे। g का डोमेन कौन है? देखो g जो डिफाइन किया था, g का डोमेन क्या था? रेंज f था। सो ये thus we get गॉफ इक्वल्स टू i of -1 1 and fog equals to I of range of f, implies G is inverse of f। implies अगर ऐसा है तो G को f का इनवर्स बोलना है, वही डेफिनेशन है। G is inverse of f implies f inverse equals to G। और डेफिनेशन कैसे लिखना है? f इनवर्स, सो इंप्लाइज f इनवर्स y इक्वल्स टू g की वैल्यू y की फॉर्म में लिखना है। सो यहां लिख सकते हैं f इनवर्स, यहां y यहां y, तो f इनवर्स y इक्वल्स टू जो डेफिनेशन किया था वही इनवर्स है, 2y अपॉन 1 माइनस y। सो दिस इज आंसर। हमको फाइंड करना था f इनवर्स, सो f इनवर्स y इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस y। ओके, सो दिस इज, और या ये भी लिख देना है कि y इक्वल्स टू नॉट 1, y इक्वल्स टू नॉट 1। क्लियर हुआ f इनवर्स कैसे निकालते हैं? हेलो बताओ, एनीवन टेल मी। Yes, sir. टेक्निक समझ में आ गया? 6 7 भी उसी टाइप का है, 8 भी उसी टाइप का है, 9 भी उसी टाइप का है। ये सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ चुका कई बार। सो हियर ओनली एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें 9 क्वेश्चंस। ओके, 6 हुआ, 7 8 भी सेम प्रोसेस है।
उसमें 1 by 1 स्टेप जो लेते हैं ना, इसमें उस स्टेप में क्लियर करना पड़ता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर भी अभी जो टाइम बचा है ना इसमें हो जाएगा, मैं इसको कर रहा हूँ अभी, है ना। सो ध्यान से देखना है क्वेश्चन 9। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7, 8, 6, 7, 8, 9 सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां भी वही देखो, हर एक क्वेश्चन में वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 1 and 2 क्वेश्चन क्या है, कंसिडर आर प्लस एफ आर प्लस 2 माइनस 5 इंफिनिटिव, इधर क्लोज्ड है इधर ओपन है, गिवन बाय फंक्शन, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो शो दैट द फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल विद एफ इनवर्स दिस, मतलब वही है, इन्वर्टिबल प्रूव करो और इनवर्स भी निकालो, पूरा प्रोसेस है इसमें। सो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये सब क्वेश्चन। ओके, पहले 6 मार्क्स का हुआ करता था, आजकल 5 मार्क्स का है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में भी वही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रूव करना है, 1, 1 देन अनटू एंड देन 1, 1 अनटू अगर हुआ तो इन्वर्टिबल हो जाएगा, इन्वर्टिबल अगर हुआ तो अनटू का डेफिनेशन यूज करना है, और वही से जो डेफिनेशन होता है जी, we have to define from ourselves this is g, and then show that Goff and Fogg equals to identity function, then we can say that j is inverse of f and you can write the inverse. क्लियर है। तो यहां पर गिवन फंक्शन, गिवन f r plus 2 minus 5 इंफिनिटिव, याद देखो यहां पर कैसा लिखा है, क्लोज्ड है और इधर ओपन इंटरवल है, यार -5 इंक्लूड है एंड ग्रेटर वैल्यू देन -5 टू इंफिनिटी। दिस इज द कोडोमेन और दिस इज डोमेन। r प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर, r प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर। सो ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है और ये तो दिख ही रहा है ग्रेटर देन और इक्वल -5 अप टू इंफिनिटी। ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। वी हैव टू शो दैट डिफाइन बाय गिवन दिस सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स की वैल्यू डिफाइन किया क्वाड्रेटिक से, 9x² प्लस 6x माइनस 5, 9x² प्लस 6x, 9x² प्लस 6x माइनस 5। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो 1, 1 and 2 दिखाना है। फॉर 1, 1 यहाँ 1, 1 दिखाना पड़ेगा। 1, 1 and 2 क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए 1, 1 and 2 दिखाना है और इनवर्स फाइंड करने के लिए अनटू डेफिनेशन का यूज करके जी डिफाइन करना है। ओके, 1, 1 के लिए whenever the given function is in the terms of either linear or quadratic or cubic or rational function, just you have to use fx equal to fy implies x equal to y for 1, 1. So यहाँ पर for 1, 1 for any x y belongs to r plus, क्योंकि यहाँ के कोई भी दो एलिमेंट का इमेज इक्वल लेना है। सो फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस, वी सी दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई इंप्लाइज, वी सी दैट, और इसके बाद ये इंप्लाइज साइन देने का मतलब हमने इसको ले लिया और इससे हमको क्या मिल रहा है। सो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या होगा, ये डेफिनेशन है, एफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। एफ वाई की वैल्यू क्या होना है राइट साइड में y के साथ, 9y² प्लस 6y माइनस 5 इक्वल्स टू, अभी टारगेट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इंप्लाइज करके x इक्वल टू वाई करके देखना है कि हो रहा है कि नहीं। तो यहां से x इक्वल टू वाई प्रूव हो जाएगा ना। देखो -5 कैंसिल, 9x² माइनस 9y² प्लस 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 0। वी कैन राइट लाइक दिस। सो 9 कॉमन, x प्लस y, x माइनस y
here 6 common, x minus y equals to 0. Here x minus y common and 9x plus y plus 6. ये राइट है? हेलो, यहां से x प्लस वाई लिख रहा हूं मैं, सही है कि नहीं? क्यों? कोई भी रिप्लाई कर सकते हो, ये सही होगा कि नहीं होगा? देखो, एक क्वांटिटी x माइनस वाई है और एक क्वांटिटी ई है। ये क्वांटिटी जो है पॉजिटिव वैल्यू है, बिकॉज देखो x y दोनों पॉजिटिव है, x एंड y आर पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव है। 9 से इंटू करो पॉजिटिव मिलेगा, प्लस 6 करो पॉजिटिव मिलेगा। दिस टोटल वैल्यू इज पॉजिटिव, नॉट जीरो, पॉजिटिव वैल्यू है। अब केवल 0 0 के लिए नहीं करना है, उसके अलावा दूसरे एलिमेंट के लिए करोगे, ये तो 0 नहीं हो सकता, सो ये 0 होगा। ये 0 होगा तो x इक्वल टू वाई होगा। ओके, x इक्वल टू वाई यहां लिख सकते हैं एज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस, सो दिस इज इंप्लाइज x इक्वल टू वाई, और x एंड y दोनों पॉजिटिव है, इसी का एलिमेंट है, सो दिस इक्वल टू दिस, therefore f is 1 1. हेलो, समझ में आया कि नहीं है? 1 1 प्रूफ, टेल मी, कोई ना कोई बोलो, 1 1 प्रूफ समझ में आया? हेलो, यस सर, 1 1 समझ में आ गया ना? हमको f इज इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, तो f 1 1 हो गया, अब 1 2 भी बताना है, उसके बाद इनवर्स फाइंड करना है, ये 3 काम है। तो अभी जितना भी टाइम है, ये जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तब तक लीव नहीं करना तुम लोग, ओके? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगा। 1 1 हो गया, नाउ 1 2। अनटू प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं? एनीवन कैन से ना, क्या बोलो? फॉर y बिलोंग्स टू कोडोमेन, फॉर y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर शुड एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन डोमेन। सो लिख सकते हैं अनटू के लिए, फॉर y बिलोंग्स टू -5 इंफिनिटी, ये कोडोमेन है, यहां के एक एलिमेंट के लिए यहां पर एक एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना है, दैट एंड एक इसका फॉलो होना है, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ओके, सो फॉर y बिलोंग्स टू दिस, we see that y equals to fx gives, मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहां का एक एलिमेंट लिए, फिर हम देख रहे हैं कि ये डेफिनेशन को अगर फॉलो करके हम x का एक वैल्यू निकालें, वो वैल्यू इसमें होना है, ये चीज को देखना। क्लियर है? सो वी सी दैट y equals to fx gives, मतलब ये लेके हम x की वैल्यू निकालने वाले हैं। सेम प्रोसेस है, वही पहले भी करते जा रहे हैं। y equals to 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये लिया, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। कोई भी बता सकते हो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी y equals to इसमें क्या हो सकता है? 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 1
परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, x की वैल्यू निकालना है, किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में। सो 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a इंटू b 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5। ये क्या किया, आप समझ में आया कि नहीं? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सो 9x स्क्वायर ये हो गया, 3 इंटू टू 6x ये हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 1 को b की जगह यूज कर रहे हैं हम लोग, इसलिए 1 को ऐड भी किया और 1 को सब्सट्रैक्ट भी किया। वी कैन डू इट ना, 1 को प्लस भी किया, 1 को माइनस भी किया और साथ में -5 बचा है। सो परफेक्ट स्क्वायर के लिए y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये y यहां से लेकर यहां तक को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको लिखा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन राइट 3x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू y प्लस 6। और इस जगह पे ये लिख सकते हैं अभी क्या, 3x इक्वल्स टू प्लस 1 इक्वल्स टू रूट ओवर y प्लस 6। अब स्क्वायर रूट लेते समय प्लस माइनस दोनों आता है, अब ओनली प्लस साइन लिया, ओनली प्लस साइन इसलिए लिया इस जगह पे कि y प्लस 6 दिस इज ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी। ओके, ये ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी है, y ग्रेटर देन 0 बिकॉज y किसको बिलोंग कर रहा है, इसको। इसका मतलब y ग्रेटर देन -5, y ग्रेटर देन -5 since y greater than equal -5। हेलो, कॉर्नर में जो लिखा हूं दिख रहा है कि नहीं तुम्हारे स्क्रीन में? हेलो बताओ। यस सर, दिख रहा है। वो क्या लिखा है इधर ध्यान दो, since y is greater than equal -5, क्योंकि y किसका एलिमेंट है, इसका है, y is greater than equal -5, y is greater than equal -5 करोगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगा ना, अंदर वाले की वैल्यू। यस सर। हाँ, ये पॉजिटिव आया तो ये पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल 0, ये यहां से x की जो वैल्यू निकालेंगे ना वो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। कैसे? अब ये जो लिख रहा हूं ये स्क्रीन पूरा यहां तक दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। सो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ये हुआ। हुआ कि नहीं? x की वैल्यू, अपना टारगेट क्या था, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है y के फॉर्म में। सो x इक्वल्स टू रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1/3। ये 1 को उधर ले गए और 3 से डिवाइड कर दिया, हमको x की वैल्यू ये मिला। ओके, और ये जो वैल्यू है x की वैल्यू, ये इसमें है कि नहीं, पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं, ये बताना है। पॉजिटिव है कि नहीं है, रिप्लाई मी। अगर पॉजिटिव है तो क्यों है? ये फिर यहां मिटा रहा है ना, ये अब हम क्या प्रूव करने वाले हैं, अनटू प्रूव तो हो गया। दिस बिलोंग्स टू r प्लस। ओके, सो राइट हियर बिलोंग्स टू r प्लस। फिर लिखना पड़ेगा, thus we get for, वही डेफिनेशन बार बार लिखते हैं, y बिलोंग्स टू -5 इंफिनिटी, there exist x equals to root of y plus 6 minus 1 upon 3 belongs to r plus such that y equals to fx. Therefore f is
अनटू। यहां पर हमने क्या किया था, y को इसका एलिमेंट लेके इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल के दिखाया था कि r प्लस में है, इसी से तो निकाला। सो वी कैन राइट फॉर y बिलोंग्स टू दिस देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r प्लस सच दैट y इक्वल टू fx, तो f इज अनटू, f इज अनटू हो गया। सो 1 1 भी है, अनटू भी है, सो इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल है। तो अब हमको क्या यूज करना है, अब हमको इनवर्स निकालना है। ओके, इनवर्स अगर निकालना है तो अब हम g डिफाइन करेंगे रिवर्स में, यहां से यहां, और इसी को लेंगे जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, इसी को g यूज करेंगे और गॉफ और फॉक की वैल्यू निकाल के दिखाना है और फिर इसी को इनवर्स बताना है। जितने सारे क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन में इसी टाइप का किया हुआ है, बट उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करके दिखाना है। 1 1 हुआ, अनटू हुआ, इन्वर्टेबल हुआ, या अनटू हो गया। अब ये लिखना है यहां पर, अब यहां क्या लिखना है, now since f is 1 1 and unto, therefore f is invertible implies f inverse exist। अगर f इनवर्स एग्जिस्ट है तो इनवर्स एग्जिस्ट मींस रिवर्स में एक फंक्शन डिफाइन करना है जिसको g नाम देना है, और g इसी को डिफाइन करना है जो x की वैल्यू है। ओके, बाकी वही सेम स्टेप है, यहां पर स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू राइट एंड करके भी दिखाना है। ओके, सो यहां लिखो, यहां क्या लिखना पड़ेगा, नाउ वी डिफाइन g सच दैट, उल्टा फंक्शन डिफाइन करेंगे यहां से यहां पर, -5 इंफिनिटी टू r प्लस such that gy equals to रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ये वही जो x की वैल्यू मिला था उसी को g डिफाइन करना है। ये हो गया, ये स्टेप है। नाउ वी डिफाइन g रिवर्स में, दिस टू दिस सच दैट दिस, we see that, फिर प्रूव करना है गॉफ एंड फॉक, गॉफ x इक्वल्स टू g fx इक्वल्स टू, fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू जो दिया हुआ था g ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस y, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ fx एंड टोटल इज सिंगल एलिमेंट फॉर g। ये y की जगह पे ये एलिमेंट पूरा पूरा रखना है इसमें और सॉल्व करके देखना है। रूट ओवर y के प्लस पे 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 3, ये क्लियर है, जी वाई की डेफिनेशन है। प्लस 6, यहां प्लस 6 भी करना पड़ेगा ना, प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। अब रिप्लाई करो, ये इसकी वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या आना है, अभी तो करके आए ना, ये क्या हो जाएगा -5 प्लस 6, ये हो जाएगा 1, सो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर ये क्या बन जाएगा 3x प्लस 1, और 3x प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3x 3 कैंसिल हो जाएगा x, सो इसकी वैल्यू मिल जाएगा x, दिस इज इक्वल्स टू x। यू कैन शो इट, ये जो अंदर है ना इसकी वैल्यू होगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जैसे रूट हटाया तो 3x प्लस 1, 1 कैंसिल, 3 कैंसिल, x also, एंड FOG, यहां g है तो यहां y है, इसकी वैल्यू क्या होगा, f ऑफ gy
मीटिंग लीव नहीं करना है, टाइम हो गया तब भी ये क्वेश्चन कर रहा हूं, समझना है अच्छे से। एफ जी वाई, जी वाई की वैल्यू क्या है वो लिखा हुआ है। सो एफ ऑफ रूट ओवर वाई प्लस 6 माइनस 1/3, ये जी वाई के प्लस पे लिख दिया। और एफ की डेफिनेशन यूज करो। एफ की डेफिनेशन क्या था, 9x² प्लस 6x माइनस 5। सो x की जगह पे ये सिंगल एलिमेंट ये यूज होगा। सो क्या कैसे लिखना है यहां पर, 9 रूट y प्लस 6 माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस, फिर क्या लिखना है, जी वाई की वैल्यू ये लिख दिया 9x² प्लस 6x प्लस 6x की जगह फिर से वही लिखना है, रूट y प्लस 6 माइनस 1/3 एंड माइनस 5। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करने से भी वैल्यू जो है ना y ही आएगा। यहां स्क्वायरिंग एडिंग सब करके देख सकते हो, वैल्यू आना है y, परफेक्टली y आएगा। ये माइनस अपन ए, इसका स्क्वायर करना है, ये इंटू है, ये भी इंटू कर देना है, बाकी स्क्वायर करने से यह भी रूट आएगा, वो रूट रूट कैंसिल होके फाइनली यू कैन गेट y। ओके, तो गॉफ मिला और फॉग मिला। देखो गॉफ की वैल्यू मिला x, फॉग की वैल्यू मिला y, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया। Thus we get GOF equals to आइडेंटिटी फंक्शन GOF x, x किसका एलिमेंट है इसका, तो I r प्लस GOF equals to and fog equals to what, fog equals to ये G ये I इस पे है -5 इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये मिलने का मतलब क्या हुआ, G इज द इनवर्स ऑफ F इंप्लाइज G इक्वल्स टू F इनवर्स, thus F इनवर्स कैन बी डिफाइंड। तो इसके आगे क्या आंसर लिख देना है, इंप्लाइज F इनवर्स y इक्वल्स टू जी वाई, एफ इनवर्स है, जी वाई की वैल्यू जो था वही लिख देना है, रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1/3। सो दिस इज आंसर एफ इनवर्स। जी जो है एफ इनवर्स है और यहाँ y लिखो, यहाँ y लिखो, एफ इनवर्स y लिखो, तो जी वाई की जो वैल्यू है वही एफ इनवर्स हो जाएगा। सो दिस इज इनवर्स ऑफ एफ। ओके, तो सबको समझ में आ गया ना? हेलो, हाँ, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आता है, अच्छे से पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन 9 तक सॉल्व कर लेना है ना, 1.3 का। 1-2 क्वेश्चन का डिस्कशन कल करेंगे, है ना? ओके, मीटिंग क्लोज कर रहा हूं, है ना? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।